Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Dear students, today our topic is very interesting and informative. Today we are going to talk about complex sentence and subordinating conjunction. So first of all, I tell you what is complex sentence. There are four kinds of sentences: simple, compound, complex, and compound complex. So compound sentences are those in which conjunction that I have already introduced. Today we are going to see what are subordinating conjunctions and what are the kinds of subordinating conjunctions. Now subordinating conjunctions, they join two clauses. One clause will be independent and the other is dependent. So first of all, we start from these two kinds of clauses, dependent and independent. Dependent clause is actually the clause which produces a question in our mind, and that is not a complete sentence. That if you separate it, that will give no meaning until you join the other clause. So dependent clause, it means that is depending on independent clause. For example, the principal announced that the school will remain closed for 7 days due to pandemic. तो इसमें आप द प्रिंसिपल अनाउंस्ड देखें तो द प्रिंसिपल अनाउंस्ड एक क्लास है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन इसका मीनिंग मुकम्मल नहीं है कि क्या अनाउंस किया। आपके जहन में क्वेश्चन पैदा होता है। अगर आप सेपरेट लिखें तो आपको पूरा सेंटेंस लगेगा, लेकिन दिस इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लास जो बताएगी आपको कि क्या अनाउंस किया। तो इस तरह द प्रिंसिपल अनाउंस्ड क्या हो गई, डिपेंडेंट क्लास। दूसरी क्लास दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर 7 days बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो ये उसका रीजन बता रही है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लास। नाउ लेट अस गो टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड देयर काइंड्स। देयर आर एक्चुअली मैनी काइंड्स ऑफ subordinating conjunction, but I'll introduce only 8. Subordinating conjunctions, they are many. Actually, they are in hundreds. So, all the subordinating conjunction you cannot learn, you cannot remember. It is why I've told you that you learn coordinating conjunctions. Those are few, those are easy to remember. While these subordinating conjunction, they are many. Our 8 kinds of subordinating conjunction we will discuss today, so that you understand subordinating conjunction and complex sentence. What are the complex sentences? Let us start from subordinating conjunction of time. Actually, this conjunction will tell about the timing of some action. For example, I left home when I received your call. तो when subordinating conjunction of टाइम है जो हमें बताता है कि कोई काम कब वकूफ पजीर। व्हेन सम एक्शन दैट टुक प्लेस, कि आई लेफ्ट होम, मैंने घर छोड़ा, कब छोड़ा, जब तुम्हारी कॉल रिसीव की, तो वो उस टाइम पर। तो व्हेन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। अनदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम इज देन, एट दैट टाइम, एटसेट्रा। सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस। The forgetful man could not find the place where he had hidden his gold. Where बता रहा है कि किस जगह पर, तो where is subordinating conjunction of place. तो there, here, where, these are subordinating conjunction of place. Next is subordinating conjunction of contrast. For example, though, although, even if. These subordinating conjunction tell the contrast. ये कंट्रास्ट का मतलब होगा कि एक एक्शन की वजह और रिजल्ट या जो कॉन्सिक्वेंस है वो उसमें कंट्रास्ट है। मतलब कि एक क्लास बता रही है कि ये काम उसने करने के लिए कोशिश की, जबकि दूसरी बता रही है कि ये नहीं हुआ, या उसने कोशिश नहीं भी की फिर भी वो मिल गया, तो कंट्रास्ट है। तो देन इट इज कॉल्ड subordinating conjunction of contrast. For example, Quaid-e-Azam kept on working hard although he was terribly sick.
तो इंडिपेंडेंट क्लास में और डिपेंडेंट क्लास में दोनों में कंट्रास्ट आपको नजर आया कि डिपेंडेंट क्लास में क़ायद आज़म ने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि अगरचे इस मेहनत के काबिल उनकी सेहत नहीं थी। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंसेशन। तो कंसेशन आपको पता है रियायत देने को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगरचे किसी ने कोई काम नहीं किया, कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अपने बंदों से जो हुक्म देते हैं जिस काम के करने का बंदे नहीं करते, इसके बावजूद अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाते हैं। तो ये कंसेशन है ना अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम माफ़ी मांग लो तो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? अल्लाह फॉरगिव्स हिज स्लेव्स ऑल्दो दे ऑफन फॉरगेट हिज ऑर्डर्स। तो इसमें आप देखें कि ऑल्दो जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंसेशन है। तो ये दो ऑल्दो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंसेशन भी हैं और कंट्रास्ट भी हैं। जब दोनों क्लॉजेज में कंट्रास्ट होगा तो ऑल्दो और दो जो है दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, और जब कंसेशन दी जाएगी किसी वजह से तो देन इट विल बी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कॉज और इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, बिकॉज, therefore, it's why, consequently, he was not feeling well, consequently he left the class earlier। तो इसमें आप देखें कि वो बताता है कि इफेक्ट क्या हुआ उसके बीमार होने का, कि वो क्लास छोड़कर चला गया। तो पर्पस और इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज रीजन। तो ये किसी काम करने की वजह बताती है। He stopped reading because the light got dim। तो ये बताता है कि उसके काम बंद करने की क्या रीजन हुई कि उसने पढ़ना बंद किया। द लास्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस। तो ये हमें बताएगा कि किस मकसद के तहत कोई काम किया गया। ये कंजक्शन है बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, देंस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, he bought a new device because he needed that। तो ये पर्पस बताता है बिकॉज कि क्यों खरीदी नई डिवाइस, कि क्यों खरीदी नई डिवाइस। इसी तरह द स्मेल वॉज ऑफेंसिव हैंस ही स्टॉप्ड इनहेलिंग। तो हैंस बताता है कि उसने क्यों इनहेलिंग बंद की। तो हैंस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस। तो दीज वर 8 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वी डिस्कस्ड। There are many more. However, these 8 were important, those we discussed. Okay, thank you Allah.